Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor, and now we are going to start off our discussion with the female reproductive physiology. And female reproductive physiology is confusing subsection for many students, and the reason is that certain things over there, they are not logical. Generally when we discuss physiology, we are discussing things in a logical way. लेकिन हाँ, अगर female reproductive physiology में कुछ important principles को आप accept कर लें, फिर जो reproductive physiology है females की, इसकी study relatively आपके लिए easier हो जाएगी. So pretty conceptual and tricky area from the examination point of view, and let's have a look at the big picture of this particular subsection. इसमें सबसे पहले हम anatomy of the female reproductive system in detail discuss करेंगे. Secondly, we'll talk about the reproductive cycle, and last पे हम birth process को discuss करेंगे. So let's start off with anatomy, and I have got few questions for you at this stage. हमारे पास command है choose the single best answer for each statement regarding female reproductive system. Right? A option is ovary, B option is oviduct, C option is uterus, D option is cervix, and E option is vagina. और जो statement है हमारे पास primary follicles are present in, तो basically ये ovary में present है. Fertilization takes place at, तो fertilization oviduct में होती है, and implantation takes place at, तो जो implantation है embryo की वो uterus में होती है. So best response would be Charlie to this question. इनकी जो logics हैं उनको हम आगे चल के discuss करते हैं. Another question, thickest layer in the wall of uterus just before menstruation. A option is endometrium, B option is myometrium, C option is perimetrium, D option is adventitia. कि menstruation से पहले no doubt कि जो endometrium है इसकी thickness increase हुई भी होती है, right? As a result of menstruation इसकी thickness decrease हो रही होती है, लेकिन at any point in time जो thickest layer होती है uterus की wall में वो myometrium ही होती है. यानी कि even जब endometrium maximally भी developed होगी in the mid of the secretory phase, जैसे कि हम अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे, even उस वक्त भी जो सबसे ज़्यादा thickness होगी वो myometrium ही की होगी. So best response would be beta. Now let's discuss the anatomy of the female reproductive system with the help of this tracing. So एक फीमेल में बेसिकली a pair of ovaries होता है जिनको फीमेल गोनेड्स भी कहते हैं. In the pelvic region, one ovary is on the right side and one ovary is on the left side. अभी हम आगे चल के एक फोटोग्राफ में भी इसको देखते हैं. So there are two ovaries, and each ovary actually it is associated with the oviducts or fallopian tubes. So it's associated with, मैं यहाँ पे wording use कर रहा हूँ associated with. I'm not using the word connected with. I'm not using the word connected with. क्यों? क्योंकि basically as such ovaries और oviducts के दरमियान में कोई direct communication नहीं है, लेकिन जस्ट जो ओवरीज हैं उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ओविडक्ट्स का एक एंड पड़ा हुआ होता है, एंड द ओविडक्ट देन अल्टीमेटली इट ओपन्स इनटू द यूट्रस. सो ओविडक्ट के बारे में ये कह सकता हूं कि इट ओपन्स इनटू द यूट्रस, और एक्चुअली इट इज कनेक्टेड विद द यूट्रस. सो अब कह सकते हैं कि हर ओवरी से एक ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब, या इसको कई दफा हम यूट्राइन ट्यूब भी कह देते हैं, राइट? सो ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब बेसिकली ये ओपन होगी इनटू द यूट्रस. तो यूट्रस को फिर हम वूम्ब भी कह देते हैं, और बेसिकली यूट्रस ही वो साइट है जहां पे इम्प्लांटेशन होती है, जहां पे इम्प्लांटेशन होती है ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो. सो अल्टीमेटली अब ये भी कह सकते हैं कि जो बेबी की डेवलपमेंट होनी है, बेबी की डेवलपमेंट वो भी इसी यूट्रस के अंदर ही होगी. अच्छा, ये जो ओविडक्ट्स या फ्लोपियन ट्यूब्स हैं ये है मोस्ट कॉमन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन. ये वो पॉइंट है जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है. So fertilization most commonly takes place at oviducts or fallopian tubes, and implantation and development of the baby it takes place at the uterus, जिसको हम simple language में womb भी कहते हैं. And there are three layers in the wall of the uterus. The innermost layer is the endometrium. Innermost layer जो है ये endometrium है, and the outermost layer this is the perimetrium. Outermost layer this is perimetrium, and in between these two layers we have got the myometrium. अब जो endometrium है बेसिकली endometrium ही वो लेयर है जो कि अल्टर होती है विद menstrual cycle.
सो जो मंथली साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल, बेसिकली इसी एंडोमेट्रियम की थिकनिंग इंक्रीज हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, और जब मेंस्ट्रुएशन होती है या ब्लीडिंग होती है बेसिकली वो भी इसी एंडोमेट्रियम की शेडिंग की वजह से ही हो रही होती है, राइट। जबकि जो मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम ये इन बिटवीन एंडोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम प्रेजेंट है, और ये थिकेस्ट लेयर है यूट्रस की वॉल के अंदर, ये थिकेस्ट लेयर है, एंड दिस मायोमेट्रियम दिस इज बेसिकली कंप्राइज्ड ऑफ द स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स से मायोमेट्रियम बनी हुई है, इट्स कंप्राइज्ड ऑफ द स्मूथ मसल्स। Alright, and then we have got the outermost perimetrium. So ये तीन बेसिक लेयर्स हैं यूट्रस की वॉल में। एनीवेज देन जो यूट्रस का लोअर एंड है उसको हम सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स क्या है? बेसिकली यूट्रस ही का पार्ट है, लेकिन उसका जो लोअर एंड है उसको हम यूट्रस का नाम दे देते हैं। सो लोअर एंड ऑफ द यूट्रस, सॉरी उसको हम सर्विक्स का नाम दे देते हैं। सो लोअर एंड ऑफ यूट्रस इज नोन एज द सर्विक्स, एंड सर्विक्स इज देन एसोसिएटेड विद वजाइना, राइट। सर्विक्स जो है फिर ये वजाइना के साथ एसोसिएटेड है। अब इसमें जरा गौर कीजिएगा कि ओवरीज में बेसिकली जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स वो होती हैं। एवरी मंथ कुछ फॉलिकल्स एक्टिवेट होती हैं और कोई एक आध फॉलिकल जो कि मैच्योर होती है, अल्टीमेटली उसकी रप्चरिंग से ओवम रिलीज होगा। ओवम रिलीज होके इट ट्रेवल्स थ्रू द ओविडक्ट्स एंड इट्स मेकिंग इट वे टुवर्ड्स द यूट्रस, और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉपुलेशन, राइट, और इंटरकोर्स, जो स्पर्म्स हैं दे मेक देयर वे थ्रू द वजाइना, थ्रू द सर्विक्स, थ्रू द यूट्रस टू द ओविडक्ट्स। सो ओविडक्ट्स के लेवल पे स्पर्म्स पहुंच जाते हैं, एंड देन ओविडक्ट के लेवल पे ही स्पर्म और एग की फ्यूजन से जाइगोट बनता है, और ये जो जाइगोट है बनने के बाद देन इट मेक्स इट्स वे टू द यूट्रस और वोम्ब, जहां पे आके उसकी इम्प्लांटेशन होती है और उसके बाद फिर बेबी की डेवलपमेंट होती है, राइट। सो ये हाईएस्ट यील्ड फैक्ट्स थे रिगार्डिंग द फीमेल anatomy of the female reproductive system. Now let's have a look at this photograph and try to understand the anatomy of the female reproductive system. Let me orient you towards this photograph. इस photograph में basically जो pelvic region है human female का उसको दिखाया जा रहा है, and this is the right side and this is the left side. और इसमें अगर आप गौर करें तो we have got this ovary, right? And ovary is basically associated with the fallopian tube or the uterine tube, right? So this is the ovary here, and this is the fallopian tube or the uterine tube, and this uterine tube is ultimately opening up into the uterus, and this lower end of the uterus, so ये सारी की सारी जो है इसके अंदर क्या है, this is the uterus, right, and this lower end of the uterus, this is known as the cervix. So ये cervix है, and cervix is then associated with the vagina. So ये overall कह लें कि different structures हैं in the anatomy of the female reproductive system. So you have got the ovary, the fallopian tube, the uterus, cervix and the vagina. तो इसमें अब हम ज़रा फोकस करते हैं ओवरी पे। सो यू सीन हियर, ये लेफ्ट साइड की से ओवरी है, तो यू कैन सी इन दिस ओवरी द डेवलपिंग फॉलिकल्स। सो ये हमारे पास एक स्मॉल फॉलिकल है, ये डेवलप हुई ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल और अल्टीमेटली ये मैच्योर फॉलिकल बन गई, राइट, द ग्राफियन फॉलिकल। और जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुई तो ये जो ओवम है इसमें से ये रिलीज हो गया। बेसिकली ये अभी सेकेंडरी ओसाइट है, दिस इज द सेकेंडरी ओसाइट, और ये मेटाफेज 2 पे हेल्ड है, और अगर फर्टिलाइजेशन होगी फिर सेकेंड मेयोटिक डिवीजन ये कंप्लीट करेगा और फाइनली ओवम बनेगा। अभी ये सेकेंडरी ओसाइट स्टेज पे, और उसके बाद फिर इसकी रप्चरिंग के नतीजे में ये जो स्ट्रक्चर बना है ये कॉर्पस ल्यूडियम है। इसकी जो डिटेल है सारी की सारी ओवरी के अंदर किस तरह से फॉलिकल्स के डेवलप होने से प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल और उससे फिर अल्टीमेटली कॉर्पस ल्यूडियम बनते हैं, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाकर डिटेल से डिस्कस करेंगे। एनीवेज, सो ये है जी सेकेंडरी ओसाइट। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी गौर करें कि ओवरी और फ्लोपियन ट्यूब के दरमियान में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, राइट। सो इसका मतलब ये होगा कि ये जो सेकेंडरी ओसाइट है इसको एक दफ़ा ओवरी से जब रिलीज किया जाता है तो ये जाता है पेरिटोनियम में, और फिर पेरिटोनियम से इसको ये जो फ्लोपियन ट्यूब है ये सक करती है, एंड देन ये जो सेकेंडरी ओसाइट है इट स्टार्ट्स ट्रेवलिंग थ्रू द फ्लोपियन ट्यूब, राइट। सो ये फ्लोपियन ट्यूब से ट्रेवल करेगा। अब जो फ्लोपियन ट्यूब है इसके 4 मेजर पार्ट्स हैं। एक फिम्ब्रिया है जो कि एसोसिएटेड विद द ओवरी है, एंड सेकेंडली वी हैव गॉट दी
infundibulum. So ये जो पोर्शन है ये this one over here, this is the infundibulum, and then we have got the ampulla. So ये जो segment है इसका, ये इसका third major part है fallopian tube का, that is the ampulla. एंड देन एक वो पार्ट है इसका जो कि कनेक्टेड है विद द यूट्राइन ट्यूब और विद द यूट्रस और द वूम्ब, जिसको बोलते हैं इस्थमस. तो बेसिकली जो एम्पुला ऑफ द फलोपियन ट्यूब है, ये वो साइट है जहां पे मोस्ट कॉमनली फर्टिलाइजेशन होती है. Alright, when a male inseminates a female or a female gets inseminated by a male, तो जो sperms हैं ये वजाना से through the cervix, through the uterus and ultimately they make their way into the fallopian tube. और एम्पुला के लेवल पे जाके जो स्पर्म्स हैं वो इसको ओवम को फर्टिलाइज करेंगे या सेकेंडरी ओसाइट के साथ पहले फ्यूज होंगे, अल्टीमेटली फाइनली मर्ज होंगे विद द ओवम एंड यू विल एंड अप हैविंग द zygote. And now the zygote will keep on traveling towards the uterus. So 5वें से 6ठे दिन roughly आप कह सकते हैं after the ovulation, ये जो ovum है it would make its way into the uterus and it will get implanted there, right? ये वहाँ पे implant हो जाएगा, right? And it would start developing into a baby, right? So uterus जो है ये साइट है implantation की, और uterine tube उसमें से भी उसका part ampulla most common साइट है fertilization की. अब फर्ज करें अगर कभी ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूस हो कि ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये इसके अंदर सक ना हो पाए फलोपियन ट्यूब के अंदर, क्या फर्टिलाइजेशन होगी? एंड द आंसर इज यस, अभी भी फर्टिलाइजेशन हो सकती है. अब स्पर्म ऑल द वे ट्रेवल करेगा टू द ओवम और सेकेंडरी ओसाइट, और जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होगा इसको फर्टिलाइज करेगा, वहीं पे जाइगोट बनेगा और अल्टीमेटली एब्डोमेन में ही ये जो जाइगोट है ये इम्प्लांट हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है. और ऑफ कोर्स एब्डोमेन जो है ये जनरली ये डिज़ाइन नहीं है फॉर एक्चुअली डेवलपिंग अ बेबी, तो किसी भी स्टेज पे ये जो प्रेगनेंसी है ये रप्चर होगी एंड इट कैन एंडेंजर द लाइफ ऑफ दैट रिस्पेक्टिव फीमेल. इस फोटोग्राफ में एक और चीज़ भी आप देख सकते हैं कि ये जो वॉल है इसकी यूट्रस की प्रेटी थिक वॉल है, इसमें जो इनर मोस्ट लाइनिंग है दिस इज द एंडोमेट्रियम, आउटर मोस्ट जो इसमें लाइनिंग है दैट इज द पेरीमेट्रियम, और दरमियान में ये जो थिकेस्ट लेयर आपको नजर आएगी दिस इज द मायोमेट्रियम. सो ये हाईएस्ट यील्ड फैक्ट्स थे रिगार्डिंग द एनाटॉमी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो लेट्स हैव अ लुक एट अनदर फोटोग्राफ. सो ये फीमेल का एंटीरियर एस्पेक्ट है, ये इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ये इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आपको नजर आ रही है, राइट? एंड सो ये पेल्विक रीजन की इंटीरियर वॉल है, यू सीन हियर दिस इज द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. ये आपको वर्टिब्रल कॉलम भी नजर आ रहा है एंड यू कैन सी इन हियर सो दिस ट्रैक्ट इज द वेजाइना, राइट? वेजाइना इज एक्चुअली लीडिंग टू द सर्विक्स. ये जो लोअर एंड ऑफ द यूट्रस है बेसिकली ये सर्विक्स है, एंड ये जो स्ट्रक्चर है ओवर हियर दिस इज द यूट्रस, एंड दिस यूट्रस इज एक्चुअली कनेक्टेड टू द फ्लोपियन ट्यूब जो कि दूसरे एंड पे ओवरी के साथ एसोसिएटेड है. सो यू सीन हियर इसके अंदर से ये अगर लेफ्ट साइड से पेशेंट को या इस इंडिविजुअल को दिखाया जा रहा है तो वी हैव गॉट दिस ओवरी and this ovary is associated with this fallopian tube, and the fallopian tube it opens up into the uterus which is communicating with the vagina, right? So sperm जो है वो ट्रेवल करेगा फ्रॉम वजाइना ऑल द वे थ्रू द यूट्रस थ्रू द फ्लोपियन ट्यूब, और अल्टीमेटली वो फ्लोपियन ट्यूब में जाके जहाँ पे ओवम आ चुका होगा उसको फर्टिलाइज करेगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद वो आके यहाँ पे यूट्रस के अंदर जो है वो जाइगोट इम्प्लांट होगा और डेवलप होगा इनटू अ बेबी. Join any traditional academy. नेशनल एप्लीकेट की तैयारी के लिए ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन ना करें. अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन करने की बजाय ऑनलाइन एकेडमी जैसे कि टॉप ग्रेड है से एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं तो इससे क्या फायदा होगा? इससे आप 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ स्टडी में ऐड कर लेंगे. और याद रखना कि सेल्फ स्टडी ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमिनिंग द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट इन द नेशनल एप्लीकेट. और दूसरे नंबर पे आपकी प्रिपरेशन फास्टर, स्मार्टर और मच बेटर होगी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं एकेडमी गए बगैर तो आप 50,000 से लेके 1 लाख तक तकरीबन अपनी जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेंगे. Rely on your own textbooks and topgrade.bk only. मैंने ओवर लास्ट डेकेड बेतहाशा सक्सेसफुल और फेलिंग स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज किए हैं. जो स्टूडेंट्स का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर है
वो ये है कि वो स्कैटर्ड रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो बहुत सारी जगहों से एट सेम टाइम तैयारी कर रहे होते हैं। सो ये उनको उनका जो ओवरऑल फोकस है तैयारी के ऊपर, उसको ये चीज स्पॉइल कर देती है। हमने topgrade.pk प्लेटफॉर्म को आपके लिए इसीलिए बिल्ड किया है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा और टॉपग्रेड के अलावा किसी भी और रिसोर्स को कंसल्ट करने तक की जरूरत ना हो। सो रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स, अब जिस भी प्रोविंस से है, रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स एंड topgrade.pk ओनली, क्योंकि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा जितना कुछ भी आपको चाहिए अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए, वो ऑलरेडी इसमें टॉपग्रेड में मौजूद है। और यहाँ भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 4-5 इयर्स में 200 से ज्यादा ब्रिलियंट टीम मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, और इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक हम लेके आए हैं कि अब हजारों स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इससे बेनिफिट ले चुके हैं। And now let's start off our discussion with the reproductive cycle. So this is a very conceptual area from the examination point of view. So मैं कोशिश करूँगा through the course of our discussion मैं जो highest yield facts हैं उनको effectively आपके लिए summarize कर पाऊँ। And in the very beginning, I would like to ask you questions. A option is GnRH, B option is LH, C option is FSH, and D option is FSH and LH. E option is estrogen, F option is progesterone. I'm going to ask many questions from you from this particular area. इससे पहले कि मैं discussion start करूँ, because I actually create confusions and then I fix those confusions. That's how I like to teach, right? So just to create confusions or just to test your understanding at this stage, मैं ये बहुत सारे tricky questions आपसे पूछूंगा, और उसके बाद फिर through the course of my लेक्चर मैं आपकी सारी की सारी जो कंफ्यूजन होंगी उनको फिक्स भी करूंगा। सो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, गोनेडोट्रोपिन्स इज द नेम गिवन टू। तो जो गोनेडोट्रोपिन्स हैं ये हम कलेक्टिवली एफएसएच और एलएच को कहते हैं। आंसर इज डेल्टा। इन ह्यूमन फीमेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल विच हार्मोन इज रिलीज्ड एट प्यूबर्टी। तो सबसे पहले जीएनआरएच रिलीज होना स्टार्ट होता है। एंड अनदर स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हैज रिसेप्टर्स ऑन प्राइमोर्डियल फॉलिकुलर सेल्स। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर बेसिकली एफएसएच के रिसेप्टर्स होते हैं। Another statement, which of the following hormone is responsible for oogenesis? तो oogenesis के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है that is this follicle stimulating hormone. Answer is Charlie. And another range of questions, again हमारे पास options हैं। A option is GnRH, B option is LH, C option is FSH, D option is FSH and LH, E option is estrogen and F option is progesterone. एंड हमारे पास पहली स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। एलएच सर्ज इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। इसकी रीजनिंग हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। बेस्ट रिस्पॉन्स इज बीटा। अनदर स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हैज रिसेप्टर्स ऑन सेल्स ऑफ कॉर्पस लुटियम। तो कॉर्पस लुटियम जो कि रप्चर्ड फॉलिकल से अल्टीमेटली बनती है, उसके ऊपर अब किसके रिसेप्टर्स होते हैं? उस पे बेसिकली LH के रिसेप्टर्स होते हैं। आंसर इज अगेन बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन टर्न्स फॉलिकुलर सेल्स इनटू अ येलोविश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। बेसिकली ये भी कॉर्पस ल्यूटियम की बात हो रही है कि जब फॉलिकुलर रप्चर होती है उससे फिर कॉर्पस ल्यूटियम कौन से सेल बनवाते हैं? अगेन बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी LH. Another statement, which of the following hormone is responsible for repairing endometrial wall after menstruation? तो जब menstruation हो गई, अब जो endometrial wall repair होनी है, ये repairing it would be carried out by the estrogen. After the menstruation, it would be repaired by the estrogen. Answer is E. Another statement, which of the following hormone is responsible for thickening and vascularization of endometrium in post-ovulatory phase? राइट, सो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फॉर थिकनिंग एंड वेस्कुलराइजेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम? तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में बेसिकली प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल। सो एफ वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। इसकी भी रीजनिंग को हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अनदर रेंज ऑफ क्वेश्चंस, अगेन हमारे पास ऑप्शंस हैं GnRH, LH, FSH एंड LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। स्टेटमेंट है, which hormone develops the endometrium and make it receptive for implantation of zygote? तो बेसिकली एंडोमेट्रियम को किसने डेवलप करना है और उसको रिसेप्टिव बनाना है फॉर जाइगोट इम्प्लांटेशन। बेसिकली ये वाला जो काम है ये पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में प्रोजेस्टेरोन कैरी करता है हार्मोन। Another statement, which of the following hormone is responsible for maintenance of corpus luteum during pregnancy? तो प्रेगनेंसी के दौरान corpus luteum को मेंटेन करना LH का काम है। आंसर इज बीटा। Another statement, production of which hormone is at peak during secretory phase? तो during secretory phase basically progesterone की peaks सारी होती हैं। आंसर इज F। अभी हम आगे चल के इनके हार्मोन के लेवल्स के हवाले से ग्राफ भी डिस्कस करेंगे।
तो उस ग्राफ के जरिए इनके जो डिफरेंट लेवल्स हैं इन डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल उनको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से वो वेरी कर रहे हैं। विच आर द फॉलोइंग हार्मोन इज मेनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओवरीज आफ्टर ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के बाद जो मेजर ओवेरियन आउटपुट है दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन। इसकी भी रीजनिंग हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अनदर स्टेटमेंट, द डिक्रीज्ड प्रोडक्शन of which hormone causes menstruation by breakdown of endometrial wall। तो किस हार्मोन की डिक्रीज प्रोडक्शन से मेंस्ट्रुएशन होगी? तो बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन ही की डिक्रीज प्रोडक्शन से अल्टीमेटली मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है। सो आंसर वुड बी एफ टू दिस क्वेश्चन। इसकी भी रीजनिंग को हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अनदर क्वेश्चन, if the duration of menstrual cycle is 35 days then what would be the duration of pre-ovulatory phase। तो पूरे ड्यूरेशन का menstrual cycle का ड्यूरेशन आपको दे दिया गया है और आपसे पूछा क्या गया है प्री-ओव्यूलेटरी फेज का ड्यूरेशन कितना होगा। एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज 21 डेज। अभी हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम प्री-ओव्यूलेटरी फेज या पोस्ट-ओव्यूलेटरी फेज की जो लेंथ है इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी सीखेंगे। अनदर स्टेटमेंट, endometrium of uterus gains maximum thickness during A option is proliferative phase, B option is ovulation phase, C option is secretory phase, D option is menstrual phase। तो बेसिकली जो एंडोमेट्रियम की मैक्सिमम थिकनेस आपको मिलेगी वो मिलेगी secretory phase। सो इसकी भी रीजनिंग को हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। रादर थिकनिंग का जो ओवरऑल पैटर्न्स हैं अक्रॉस द होल मंथ हम उनको डिफाइन करेंगे कि किस किस तरह से एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो चेंज हो रही है इन द 20 डेज इन द होल मेंस्ट्रुअल साइकिल। Another statement, if the level of estrogen is rapidly increasing, यहाँ पे क्या है जी, it's rapidly increasing, it indicates ovulation has just occurred, ovulation is just to occur, ovulation is occurring और ovulation will occur after 2 to 3 days। अगर rapidly increasing estrogen levels हैं बेसिकली आपको ये बताएंगे कि ovulation is just to occur। So hormonal levels को देखते हुए ovulation को anticipate करना हम अभी ये भी देखेंगे कि ये कैसे होगा। We will learn कि अगर किसी भी हार्मोन के लेवल्स के बारे में आपको बताया जाए कि स्लोली और रैपिडली राइजिंग है या पीक पे है तो उस वक्त फिर ओव्यूलेशन को क्या हो रहा होगा या उसका ओव्यूलेशन के साथ क्या कोरिलेशन होगा विद द टाइम फ्रेम, हम आगे चल के इसकी कुछ जनरलाइजेशंस भी डिस्कस करेंगे। एंड another range of questions, pretty conceptual questions. A option is long before ovulation, B option is just before ovulation, C option is just after ovulation, D option is at the mid of secretory phase, E option is just before menstruation, right? And हमारे पास कमांड है choose the single best answer for each statement regarding menstrual cycle in a human female। ठीक है, तो ह्यूमन फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड आपने क्वेश्चंस को आंसर करना है। लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन वुड बी हाईएस्ट, हाँ जी, लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन कब हाईएस्ट होंगे? बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज जस्ट बिफोर द ovulation। Levels of progesterone would be highest and the best response to this question is at the mid of the secretory phase। And levels of FSH would be highest, again the best response to this question is just before ovulation। And levels of LH would be highest, again best response is just before the ovulation, right? आगे चल के हम कुछ जनरलाइजेशंस को डिस्कस करेंगे और इन सारे क्वेश्चंस की रीजनिंग्स को भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है, right? So one would expect highest thickness of endometrium and the best response to this question is at the mid of the secretory phase, जब आप implantation expect कर रहे होते हैं। इसकी भी रीजनिंग हम आगे चल के डिटेल से जरा देखते हैं। Anyways, best response to this question is delta। Now let's start off our discussion with the menstrual cycle। If you talk about the phases of the menstrual cycle, तो बेसिकली जो menstrual cycle है इसको हम दो main phases में डिवाइड करते हैं। Number 1 we have got the follicular phase and number 2 we have got the luteal phase। so menstrual cycle की दो मेजर phases हैं, follicular phase और luteal phase, और इन दोनों phases की जो डिमार्केशन है वो होती है ओव्यूलेशन से, यानी कि ओव्यूलेशन से पहले की जो फेज है दैट इज फॉलिकुलर फेज और ओव्यूलेशन के बाद की जो फेज है दैट इज द लुडियल फेज। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा कि जो डे 1 ऑफ द ब्लीडिंग है इन द फीमेल दैट इज एक्सेप्टेड एज द डे 1 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो ये जस्ट एक कन्वेंशन है, द डे 1 ऑफ ब्लीडिंग इज द डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो अगर मैं कहता हूं कि डे 14, इसका मतलब है कि जब ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी, जिस दिन स्टार्ट हुई थी उस दिन से लेके डे 14, राइट? सो बेसिकली ओव्यूलेशन अप्रोक्सीमेटली डे 14 पे हो रही होती है। सो ओव्यूलेशन से पहले वाला जो फेज है इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज है। इट्स आल्सो नोन एज द प्रोलिफरेटिव फेज और द
प्री ओव्यूलेटरी फेज, तो वन एंड द सेम थिंग। और ओव्यूलेशन के बाद वाली जो फेज है उसमें कहते हैं लुटियल फेज, ऑल्सो नोन एज द सिक्रीटरी फेज और द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। सो लुटियल फेज, सिक्रीटरी या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, दे ऑल एक्चुअली मीन द सेम। और अब गौर करें, फॉलिकुलर फेज अप्रोक्सीमेटली टू वीक्स की है। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? अप्रोक्सीमेटली, जबकि जो लुटियल फेज है ये एग्जैक्टली 2 वीक्स की है, ये एग्जैक्टली 2 वीक्स की है। यानी कि अगर फर्ज करें कि किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल है से 28 डेज का, अगर 28 डेज का साइकिल है तो उसमें जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है कितनी होगी? एग्जैक्टली 2 वीक्स यानी कि 14 डेज। तो प्री ओव्यूलेटरी फेज कितनी हो जाएगी? वो भी 14 डेज ही रह जाएगी। लेकिन अगर फर्ज करें कि फीमेल में जो साइकिल है वो 35 डेज का हो जाता है या 21 डेज का हो जाता है, तो क्या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज या लुटियल फेज की लेंथ चेंज होगी? आंसर इज नो, क्योंकि ये फिक्स है। जो चेंज होनी है लेंथ वो सिर्फ और सिर्फ प्री ओव्यूलेटरी फेज की चेंज होगी। तो इसीलिए हमारे पास डे ऑफ ओव्यूलेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी आ जाता है कि डे ऑफ ओव्यूलेशन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द साइकिल माइनस 2 वीक्स। सो अगर लेंथ ऑफ द साइकिल है फर्ज करें 35 डेज, तो 35 माइनस 14 इज इक्वल टू 21। सो 21st डे जो होगा ब्लीडिंग से स्टार्ट करके या 21st डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस वुड बी द डे ऑफ ओव्यूलेशन। और अगर साइकिल है फर्स्ट करें 21 डेज का, 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7। सो जो डे 7 होगा, डे 7 फ्रॉम द ब्लीडिंग, बेसिकली जो डे 7 है अब वो डे ऑफ ओव्यूलेशन होगा। और जो डे ऑफ ओव्यूलेशन होता है उसके 3 डेज पहले या 3 डेज बाद अगर कहने के फीमेल की इंसेमिनेशन हो जाए तो फर्टिलाइजेशन की चांसेस दे आर देयर। एनीवेज, सो कंक्लूसिवली हमने ये डिस्कस किया कि ऑन एवरेज फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ है 28 डेज है, लेकिन ये वेरी भी कर सकती है। अगर वेरी करेगी तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज हमेशा 14 दिन रहेगी, प्री ओव्यूलेटरी फेज इसकी जो लेंथ है वो चेंज हो सकती है। राइट, सो दिस इज अबाउट द फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक और फेज कई दफा बुक्स के अंदर स्टडी करते हैं, दैट इज द मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होती है? बेसिकली मेंस्ट्रुएशन से मुराद है द ब्लीडिंग। तो जो मेंस्ट्रुएशन है ये फॉलिकुलर फेज के अंदर ही होती है। तो जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई बेसिकली, सो समझ लें कि डे 1 ऑफ द ब्लीडिंग इज द डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो डे 1 हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो डे 1 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है। सो डे 1 से लेके डे 14 तक अगर हम 28 डेज का साइकिल एक्सेप्ट करें तो वो फॉलिकुलर फेज है। इसका मतलब है कि जब ब्लीडिंग हो रही होगी वो फॉलिकुलर फेज में ही हो रही होती है। राइट, इसको हम आगे चल के अभी और भी ज्यादा डिटेल से डिस्कस करते हैं। So now we are going to focus on this concept diagram for understanding the menstrual cycle, क्योंकि एक pretty conceptual area है from the examination point of view। और अब इसमें जो students in a fix रहते हैं या इस एरिया को लेकर खास तौर पे उलझन में रहते हैं, उसकी रीज़न ये है कि they don't know where to focus if they want to understand the menstrual cycle, where they are supposed to focus. They are supposed to focus on the hypothalamus or the anterior pituitary or the ovary or the uterus, right? So they don't know where to focus, and I am here to tell you कि अगर आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को इन डिटेल इन डेप्थ अंडरस्टैंड करना है, यू आर सपोज टू फोकस ऑन दी होल एक्सिस। होल एक्सिस से क्या मुराद है? यू सीन हियर कि हाइपोथैलेमस जो है बेसिकली हाइपोथैलेमस से अब कह लें कि हाइपोथैलेमस से ये जो साइकिल है सॉर्ट ऑफ ultimately control हो रहा है, right? So hypothalamus basically this produces GnRH, that is gonadotropin releasing hormone. In response to the hypothalamic GnRH, आप कह दें कि जो anterior pituitary है it produces the FSH and LH. In response to the GnRH, the anterior pituitary produces FSH and LH. And under influence of the pituitary FSH and LH, the ovary, it actually produces the estrogen and progesterone. And estrogen and progesterone, they have got the influence on the uterus, specifically the innermost lining of the uterus, that is the endometrium. So सादा तरीन अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हाइपोथैलेमस के लेवल पे साइक्लिक वे में चेंजेस आ रही हैं ओवर 28 डेज, और उसके अकॉर्डिंगली उसके करस्पॉन्डेंस में पिट्यूटरी जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं उसमें ओवर 28 डेज चेंजेस आ रही हैं।
एंड इन रिस्पॉन्स टू दैट जो ओवेरियन हार्मोन्स हैं उनके लेवल्स में ब्लड में चेंजेस आ रही हैं, एंड इन रिस्पॉन्स टू दैट जो यूट्रस है इवन 28 डेज में इसमें साइक्लिक चेंजेस आ रही हैं. सो बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये पूरे के पूरे एक्सिस के ऊपर साइक्लिक फैशन में चेंजेस आ रही हैं. अब हम हर पॉइंट पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे क्या चेंजेस आ रही हैं. ऑलराइट, सो यू सीन हियर कि सबसे पहले अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की जीएनआरएच की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट में और एंड में इसके रिलेटिव जो है वो रिलेटिवली इसके जो लेवल्स हैं वो रिलेटिवली लोअर होते हैं, जबकि मिड ऑफ द साइकिल में जो जीएनआरएच के लेवल्स हैं ये मैक्सिमल होते हैं. राइट, लेकिन अब हम इस कॉन्सेप्ट डायग्राम में बेसिकली हम जो लेवल्स हैं डिफरेंट हार्मोन्स के, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी और ओवरी के जो हार्मोन्स के लेवल्स हैं और इसके साथ साथ जो यूट्रस की थिकनेस है, हम उनको एक्चुअली सम अप करने लगे हैं. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट द लेवल्स ऑफ द जीएनआरएच है. सो लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस फोटोग्राफ. इसमें आप देखें कि ये जो नीचे आपको नजर आ रही है ये बेसिकली क्या है, ये रेफरेंस लाइन है. दिस इज द रेफरेंस लाइन. हम इस रेफरेंस लाइन को लेके हम सारे के सारी जो चेंजेस हैं वो ओवर 28 डेज हम एक्सप्लेन करेंगे, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ फीमेल जिसकी जो लेंथ है वो 28 डेज है. तो 28 डेज वाली लेंथ के जो जिस फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है हम उसको यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं. और इसमें अगर आप गौर करें तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास से ये डे 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास ये डे 28 है. तो डे 14 जो होगा बेसिकली डे ऑफ ओव्यूलेशन है, और इससे पहले वाली जो फेज है वो फॉलिकुलर फेज है, और ओव्यूलेशन के बाद वाली जो फेज है दैट इज द लुटियल फेज. ओव्यूलेशन के बाद वाली जो फेज है दिस इज द लुटियल फेज. राइट, और फॉलिकुलर फेज के ही इनिशियल फ्यू डेज में 5 to 7 डेज में मेंस्ट्रुएशन हो रही है या मेंसेस आ रहे होते हैं फीमेल्स को. अब इसमें जरा गौर कीजिएगा कि हम इस रेफरेंस लाइन को यूज करते हुए सबसे पहले हम चेंजेस देखते हैं एट द लेवल ऑफ पिट्यूटरी, कि पिट्यूटरी के लेवल्स पे क्या चेंजेस आ रही होती हैं. अब देखें कि इनिशियल फ्यू डेज में जो लेवल्स हैं एफएसएच और एलएच दोनों हार्मोन्स के ये रिलेटिवली लोअर हैं. एफएसएच के लेवल्स एलएच की निस्बत ज्यादा हैं, लेकिन स्टिल एफएसएच और एलएच दोनों के जो लेवल्स हैं इनिशियली कम हैं. राइट, सो जैसे जैसे हम टुवर्ड्स ओव्यूलेशन जाते हैं, टुवर्ड्स द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जाते हैं, वैसे वैसे इनके लेवल्स ग्रेजुअली थोड़े थोड़े इंक्रीज होते हैं. राइट, एंड ये है स्लो राइज इन द लेवल्स ऑफ एफएसएच एंड एलएच. राइट, और उसके बाद फिर ओव्यूलेशन से जस्ट पहले क्या होता है, ओव्यूलेशन से जस्ट पहले जो लेवल्स हैं इसके एलएच के वो रिमार्केबली इंक्रीज होते हैं, लाइक यू कैन सी ओवर हेयर, और इवन जो एफएसएच के लेवल्स हैं वो भी इंक्रीज होते हैं. राइट, और ओव्यूलेशन के फौरन बाद, सो ये देखें ये जो लाइन है ब्लू लाइन ये ओव्यूलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है एज रेफरेंस. सो ओव्यूलेशन के अब कह लें कि ओव्यूलेशन से जस्ट पहले आपको एलएच और एफएसएच की पीक मिलेगी, और ओव्यूलेशन के फौरन बाद क्या होगा, एलएच और एफएसएच के लेवल्स जो हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो गए हैं, एंड अगेन वी हैव गॉट द सेम सिचुएशन. सो हमारे पास दोबारा फिर लो लेवल्स हैं जो कि दोबारा फिर नेक्स्ट साइकिल के स्टार्ट पे भी होंगे. राइट, सो दिस वाज अबाउट द एफएसएच एंड एलएच. अब देखें अब एफएसएच और एलएच के रिस्पांस में, अब इन हार्मोन्स के रिस्पांस में अल्टीमेटली चेंजेस कहां पे आ रही हैं, ओवरी के लेवल पे चेंजेस आ रही हैं. सो अब यहां पे जो ये वाला जो सेगमेंट है ये ओवरी को सम अप कर रहा है, ओवरी के लेवल पे चेंजेस को सम अप कर रहा है. सो हियर वी हैव गॉट द ओवरी, हियर वी हैव गॉट द यूट्रस स्पेशली द एंडोमेट्रियम, एंड हियर वी हैव गॉट द एंटीरियर पिट्यूटरी. राइट, उसकी जो चेंजेस हैं. अब ओवरी के लेवल पे देखिए आप जरा कि साइकिल के स्टार्ट में ओवरी के अंदर प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होती हैं जो कि ग्रेजुअली डेवलप होती हैं, और बहुत सारी फॉलिकल्स एट अ टाइम डेवलप होना स्टार्ट होती हैं. उसमें से फिर अल्टीमेटली एक फॉलिकल जैसे मैच्योर हो जाती है जिसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल एट द डे ऑफ ओव्यूलेशन वो रप्चर होती है, और रप्चरिंग के नतीजे में कह रहे हैं कि हमारे पास रप्चर्ड फॉलिकल बनती है. जो ओवम रिलीज हुआ अब वो ओवम अभी फ्लोपियन ट्यूब के जरिए ट्रेवल करना शुरू कर देगा टू द यूट्रस. अब जो रप्चर्ड फॉलिकल है ये कन्वर्ट होगी इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम. सो हियर वी हैव गॉट द कॉर्पस ल्यूटियम, और अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है इसकी फर्दर फेट डिटरमिन होनी है कि फर्टिलाइजेशन होनी है या नहीं होनी. सो फर्टिलाइजेशन अगर तो फर्ज करें कि फर्टिलाइजेशन हो गई फिर कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया जाएगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती फिर कॉर्पस ल्यूटियम जो वो डीजनरेट हो जाएगी. राइट, सो ये तो थी जस्ट के ओवरी के हद तक चेंजेस. अब देखें जरा कि अब अगर आप हार्मोन के लेवल्स पे गौर करें तो जो लेवल्स हैं एस्ट्रोजन के वो इनिशियली इन द साइकिल स्लोली राइजिंग है, फिर मिड साइकिल में जाके दे आर रैपिडली राइजिंग, एकदम से लेवल्स हैं वो बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रहे हैं.
राइट, एस्ट्रोजन के, जबकि जो लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हैं ये ओवरऑल कह लें कि प्री ओव्यूलेटरी फेज में रिलेटिवली लोअर लेवल्स हैं। तो अब देखें कि जो एस्ट्रोजन के लेवल की पीक है वो कब आई है, जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन अगेन, राइट। और एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस किसने किया है, ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होती हैं इसमें ओवरी के अंदर जो बहुत सारी कह लें कि डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, राइपनिंग फॉलिकल्स हैं, दे आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग दिस एस्ट्रोजन, राइट। तो अब इससे जस्ट पहले, अब ये कह लें कि ओव्यूलेशन से जस्ट पहले जो लेवल्स हैं एस्ट्रोजन के ये बिल्कुल पीक पे चले जाएंगे। सो हम ये भी कह सकते हैं कि प्री ओव्यूलेटरी फेज में बेसिकली जो ओवरी है ये मेनली एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रही होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द FSH हार्मोन, ये है प्री ओव्यूलेटरी फेज में। सो हम ये भी कह सकते हैं कि प्री ओव्यूलेटरी फेज में जो मेजर हार्मोनल आउटपुट है ओवरी की, प्री ओव्यूलेटरी फेज में मेजर हार्मोनल आउटपुट दिस इज एस्ट्रोजन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। जबकि जैसे ही ओव्यूलेशन होगी साथ ही जो एस्ट्रोजन के लेवल्स हैं वो रिमार्केबली डिक्रीज होंगे। सो अगर आपसे पूछा जाए कि एस्ट्रोजन के लेवल स्लोली राइजिंग है, इसका मतलब है कि अभी ओव्यूलेशन लेट है, कुछ दिन बाद होगी। रैपिडली राइजिंग है, इसका मतलब है कि जस्ट होने वाली है। डिक्रीजिंग लेवल्स हैं एस्ट्रोजन के, इसका क्या मतलब होगा कि ओव्यूलेशन हो चुकी है। सो कई दफा हार्मोन्स के लेवल्स को हम ओव्यूलेशन को एंटिसिपेट करने के लिए यूज करते भी हैं। लाइक फीमेल है, उसके डेली बेस पे उसके ब्लड सैंपल्स को लेके उसमें जो हार्मोन्स के लेवल्स हैं उनको हम बायोकेमिकली स्टडी कर रहे होते हैं। सो स्लोली राइजिंग लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन सजेस्ट अभी ओव्यूलेशन नहीं हुई, अभी दूर है। रैपिडली राइजिंग मतलब अभी हुई नहीं है लेकिन जल्द होने वाली है, इट्स जस्ट टू अकर। और अगर लेवल्स एस्ट्रोजन के किसी फीमेल के ब्लड में वो डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब ये होगा बेसिकली कि ओव्यूलेशन हैज ऑलरेडी अकर्ड। सो जस्ट बाय लुकिंग एट द लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन यू कैन टेल अबाउट द ओव्यूलेशन। सो अब इसमें देखें कि लेवल्स इसके एस्ट्रोजन के डिक्रीज हुए, अल्टीमेटली दे आर ग्रेजुअली डिक्रीजिंग इवन इन द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। अब इसके बाद जरा गौर करें कि अब जैसे ही ओव्यूलेशन होगी, ओव्यूलेशन के फौरन बाद जो लेवल्स हैं प्रोजेस्टेरॉन के वो इंक्रीज होना शुरू हुआ है। उसकी रीजन क्या है कि जैसे ही जो ओव्यूलेशन हुई, फॉलिकल रप्चर हुआ, वी डेवलप द कॉर्पस ल्यूटियम। अब ओव्यूलेशन के बाद तकरीबन 5 से 6 दिन लगते हैं कि फुल फ्लैज कॉर्पस लूटियम डेवलप हो जाती है। और कॉर्पस लूटियम का काम क्या है, कॉर्पस लूटियम ने प्रोड्यूस करना है हार्मोन कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन, और ये होना है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द LH। सो हम ये भी कह सकते हैं कि पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में जो मेजर हार्मोनल आउटपुट है ओवरी की, दिस इज प्रोजेस्टेरॉन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द LH, राइट। सो ये देखिए आप, हमारे पास ये प्रोजेस्टेरॉन आ गया। सो प्रोजेस्टेरॉन की जो पीक आ रही है ये कब आ रही है, इन द मिड ऑफ द लुटियल फेज और द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। आप देख सकते हैं इसकी मिड में इसकी पीक आ रही है, राइट। और यही वो टाइम है जब हम इम्प्लांटेशन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, राइट। सो इस टाइम पे ही इस प्रोजेस्टेरॉन ने बेसिकली यूट्रस को प्रिपेयर करना होता है फॉर सेक ऑफ इम्प्लांटेशन, राइट। सो दिस इज अबाउट द लेवल्स ऑफ द एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन। और साथ ही हमने ये भी देखा कि जो प्री ओव्यूलेटरी फेज है उसमें राइपनिंग फॉलिकल्स FSH के इन्फ्लुएंस के अंडर एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में जो कॉर्पस ल्यूटियम है, राइट, ये रप्चर्ड फॉलिकल या कॉर्पस ल्यूटियम, उसने LH के इन्फ्लुएंस के अंडर क्या प्रोड्यूस करना है, प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करना है। अब अगर फर्ज करें कि फर्टिलाइजेशन हो जाती है, क्योंकि 5 to 6 डेज के बाद फर्टिलाइजेशन ऑफ कोर्स इज एक्सपेक्टेड, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है फिर क्या होगा, जो लेवल्स हैं प्रोजेस्टेरॉन के दे वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, से अगर अनमैरिड फीमेल है, राइट, सो अगर उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, उसमें क्या होगा, उसमें ग्रेजुअली जो लेवल्स हैं प्रोजेस्टेरॉन के दे वुड स्टार्ट ऑन डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसने हो जाना है डीजनरेट। कॉर्पस ल्यूटियम ने बिल्कुल डीजनरेट है, उसका स्मॉल सा साइज रह जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स बहुत कम हो जाएंगे और यही फिर बाद में ब्लीडिंग का बायस बनेगी। अब इसमें जरा ये भी गौर करें कि अब जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, इन दोनों हार्मोन्स का जो इफेक्ट आना है वो यूट्रस के एंडोमेट्रियम पे आना है। अब देखें जरा गौर कीजिएगा कि इनिशियल डेज में जब FSH LH के लेवल्स भी कम हैं, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स भी कम हैं, तो जो एंडोमेट्रियम के हार्मोनल सपोर्ट है वो मिनिमम है, राइट, इन द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है, राइट, इसकी थिकनेस ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, मींस कि दिस इज शेडिंग ऑफ, एंड दिस इज शेडिंग ऑफ, और ब्लीडिंग के जरिए बॉडी से एंडोमेट्रियम जो है ये बाहर जा रही है। उसके बाद फिर देखें जब एस्ट्रोजन के लेवल्स राइज होने शुरू हुए आफ्टर फ्यू डेज, मे बी 4-5 डेज, तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन के लेवल्स राइज होने शुरू हुए, जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो इंक्रीज होनी शुरू हुई, इट्स कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग।
राइट। सो प्री ओव्यूलेटरी फेज में जो एस्ट्रोजन है इसने एंडोमेट्रियम की थिकनेस इंक्रीज किया, और उसके बाद फिर जैसे ओव्यूलेशन होगी अब प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स इंक्रीज होंगे, अब प्रोजेस्टेरॉन ने इसकी थिकनेस को इंक्रीज करना है। अब देखें कि मिड ऑफ द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में जहां पे प्रोजेस्टेरॉन के मैक्सिमम लेवल्स हैं वहीं पे आप जो एंडोमेट्रियम है इसकी भी मैक्सिमम थिकनेस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और यही वो टाइम फ्रेम है जहां पे जाके क्या होनी है, इम्प्लांटेशन। सो इस टाइम तक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ने यूट्रस की एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर कर दिया है फॉर सेक ऑफ इम्प्लांटेशन, फॉर सेक ऑफ रिसीविंग द बेबी, ताकि अगर जो है वो यहाँ पे एम्ब्रियो आता है उसको प्रॉपरली डेवलप किया जा सके। ओके अगर फिर उसके बाद फर्स्ट करें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गई समहाउ जो LH है ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, राइट। सो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी इससे क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम वुड बी डिजेनरेटेड, तो हार्मोनल सपोर्ट जो वुड स्टार्ट गोइंग डाउन। तो एस्ट्रोजन के लेवल ऑलरेडी कम थे, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल भी रिमार्केबली कम हो गए। अब जो डिक्रीज्ड हार्मोन्स हैं उससे भी क्या होगा, दोबारा फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, साइकिल वुड स्टार्ट अगेन, राइट। So that's how the things are going on at different levels in the menstrual cycle. So conclusive remarks मैं आपको दे देता हूँ, वो क्या है। First of all, if you talk about the levels of the hormones, ठीक है, the levels of FSH, LH and estrogen they peak just before ovulation. देख सकते हैं कि LH, FSH और इवन एस्ट्रोजन इनके लेवल्स जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन उनकी पीक आई है, और जैसे ही ओव्यूलेशन हुई साथ ही इनके लेवल्स डिक्रीज होने शुरू हो गए। देन वी हैव गॉट द प्रोजेस्टेरॉन, लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन वुड बी पीकिंग एट द मिड ऑफ द लुटियल फेज और द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। सो एक मेजर पॉइंट आपने ये याद रखना है, इसके अलावा एक और मेजर पॉइंट कि इन द प्री ओव्यूलेटरी फेज मेजर हार्मोनल आउटपुट ऑफ ओवरी इज एस्ट्रोजन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, and estrogen is being produced by the ripening follicles. In the post-ovulatory phase, the major hormonal output of the ovary is progesterone under influence of LH, and this progesterone is being produced by the corpus luteum. And progesterone की dire need होती है for maintaining the pregnancy. ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, कॉर्पस ल्यूटियम को और भी ज्यादा डेवलप किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ LH, और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स फर्दर इंक्रीज होंगे क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इज द मेन हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। इफ देयर इज नो प्रोजेस्टेरॉन देयर वुड बी नो प्रेगनेंसी। सो यू कैन रिमेंबर द P for progesterone and P for pregnancy. So progesterone is a hormone for pregnancy. Remember this fact. Okay. उसके बाद फिर हमने देखा पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में फिर मेजर हार्मोनल आउटपुट ओवरी की क्या है, इट्स प्रोजेस्टेरॉन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ LH, and this is being produced by the corpus luteum. And where would you expect the maximum thickness of the endometrium? And the best response to this question is in the mid of the post ovulatory phase. Exactly जब एस्ट्रोजन, जब प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स के पीक्स भी आ रहे हैं और जब हम इम्प्लांटेशन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस वक्त एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होगी उसकी थिकनेस मैक्सिमम होगी। सो ये हाईएस्ट यील्ड फैक्ट्स थे रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी and specifically regarding the menstrual cycle. So once again, if you want to understand the menstrual cycle, please focus on the whole axis. देखें hypothalamus के लेवल पे क्या हो रहा है, and then what's happening at the level of pituitary, then look what's happening at the level of the ovary, and then watch for what's happening at the level of the uterus, right? और किस तरह से ये सारी की सारी जो changes हैं ये आपस में interrelated हैं, right? So this is all about the menstrual cycle. ये एक कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ है, इसमें भी अगेन बेसिक आइडिया सेम है। वी हैव गॉट द एंटीरियर पिट्यूटरी देयर, एंड देन यू हैव गॉट द ओवरी, एंड देन यू हैव गॉट द यूट्रस, राइट। सो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लेवल्स ऑफ LH, FSH एंड एस्ट्रोजन पीकिंग जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, राइट। सो ये आपको अगर ओव्यूलेशन मिल रही है, राइट, सो देख सकते हैं जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। पहले देखिए किस तरह से राइपनिंग फॉलिकल्स एस्ट्रोजन बना रही हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज से पहले या ओव्यूलेशन से पहले इन द प्री ओव्यूलेटरी फेज, और उसके बाद फिर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कॉर्पस ल्यूटियम इट्स मेकिंग द प्रोजेस्टेरॉन, और आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोजेस्टेरॉन की मिड ऑफ द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में इसकी पीक्स आई हैं, और उसके साथ ही तकरीबन जो पीक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप एंडोमेट्रियल लाइनिंग की कर रहे हैं। सो ये वही हाईएस्ट यील्ड फैक्ट्स हैं। बेसिकली कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ में ज़रा ज़्यादा क्लैरिटी के साथ इनको दे दिया गया है। पहले जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है बेसिकली
उसी डायग्राम को ही फर्दर इलेबोरेट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ। आई होप दैट नाउ यू हैव अंडरस्टूड द स्टफ। सो अब यहाँ पे आप ज़रा देख लें कि बेसिकली ये ओवरी दिखाई जा रही है आपको। इस ओवरी के अंदर बहुत सारी फॉलिकल्स हैं जो डेवलप होना स्टार्ट हुई इन द स्टार्ट ऑफ द साइकिल। उनमें से एक आज जब वो फुल डेवलप होगी, जो कि आप कह लें कि वो ग्राफिन फॉलिकल बनेगी। फिर ग्राफिन फॉलिकल जब रप्चर होगी तो ओवम रिलीज होगा, जो कि सेकेंडरी ओसाइट स्टेज पे आप देख सकते हैं। ये सेकेंडरी ओसाइट स्टेज पे है ये आपका ओवम। एंड इसके बाहर क्या है, इसके बाहर जो वो जोना पेलोसिडा है, जो ओवरऑल कह लें कि प्रोटेक्टिव लेयर इज अल्टीमेटली देयर, राइट। सो इसके बाहर जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, सो सेकेंडरी आप देखेंगे ओवरऑल ये है हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट, उसके बाद फिर जोना पेलोसिडा, और उसके बाहर फिर क्या है, कोरोना रेडिएटा। सो ये बाहर क्या है, ये कोरोना रेडिएटा। सो वंस अगेन सबसे अंदर क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट, उसके बाहर क्या होगा, जोना पेलोसिडा, और उसके बाहर क्या होगा, कोरोना रेडिएटा। सो इस तरह से अब ये जो स्ट्रक्चर आप कह रहे हैं इसकी ओव्यूलेशन होती है। सो बाहर प्रोटेक्टिव लेयर्स भी प्रेजेंट हैं सेकेंडरी ओसाइट के। सो स्पर्म ने जो फ्यूज करना है, इसमें बाहर वाली जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं इनको अपने एक्रोसोम रिएक्शन के जरिए और गोल्जी के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के जरिए या एक्रोसोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के जरिए इन लेयर्स को डाइजेस्ट करके अल्टीमेटली सेकेंडरी ओसाइट तक पहुंचना है। और फ्यूज एक दफ़ा बाहर वाली लेयर्स में हो जाएगा स्पर्म, लेकिन जब फ्यूजन हो गई, जब फाइनली डिटरमिन हो गया कि यही स्पर्म हम जाके इसको फ्यूज करने वाला है फीमेल गैमेट को, उस वक्त जो सेकंड मेयोटिक डिवीजन है ये कंप्लीट हो जाएगी। और इससे पहले कि स्पर्म की एक्चुअल फ्यूजन हो विद दी फीमेल गैमेट, तो वो ओवम में कन्वर्ट हो चुका होगा। सो ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन के बाद आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम बनी है विच इज़ प्रोड्यूसिंग द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो साइकिल है, से ये डे 1 है, अगेन हमारे पास यहाँ पे से ये डे 28 है। तो इनिशियल डेज में देखें किस तरह से जो शेडिंग ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस हो रही है, एंडोमेट्रियम, ब्लीडिंग हो रही है, मेंसेस, और उसके बाद फिर एस्ट्रोजन की वजह से प्री ओव्यूलेटरी फेज में मेन डेवलपमेंट, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में मेनली प्रोजेस्टेरॉन की वजह से डेवलपमेंट। एस्ट्रोजन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द राइपनिंग फॉलिकल्स एंड प्रोजेस्टेरॉन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। एज यू कैन सी इन हियर, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेटिंग, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स गोइंग डाउन, एंड दोबारा फिर जो एंडोमेट्रियम इट वुड स्टार्ट शेडिंग ऑफ, एंड दैट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो अब यहाँ पे दो वेरी वेरी हाई यील्ड फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, LH सर्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दिस इज द LH सर्ज, ठीक है। ये मेजर हार्मोन है LH, ये लुटिनाइजिंग हार्मोन जिसने ओव्यूलेशन करवानी है। और एक और पॉइंट है, पॉजिटिव फीडबैक ऑफ एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर LH सर्ज। अब LH सर्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक ऑफ एस्ट्रोजन। अब देखें कि ओवरऑल जनरली हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि ये सीन है कि जो एंटीरियर पिस्टरी है, बेसिकली एंटीरियर पिस्टरी प्रोड्यूसेस द FSH एंड LH, जिनके इन्फ्लुएंस के अंडर जो ओवरी है इट वुड प्रोड्यूस द एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन, जिनका FSH LH के ऊपर क्या है, नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट। सो अब ये कह सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके स्टार्ट में क्लासिकली नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को ऑन द LH एंड FSH। सो राइजिंग लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन जो है दे आर ट्राइंग टू इनहिबिट द लेवल्स ऑफ LH, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है। लेकिन एक पॉइंट पे जाके जब लेवल्स जो है इसके एस्ट्रोजन के खास लेवल से बढ़ जाते हैं, राइट, यानी कि जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन, उस वक्त बजाय कि एस्ट्रोजन LH को इनहिबिट करे, इट स्टार्ट स्टिमुलेटिंग इट। तब हम कहते हैं कि नेगेटिव फीडबैक लूप इज कन्वर्टेड टू द पॉजिटिव फीडबैक लूप। और LH की जो प्रेजेंस है इन वेरी वेरी हाई कंसंट्रेशंस, दिस इज एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट फॉर द ओव्यूलेशन। सो ये दो हाई यील्ड फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। LH सर्ज इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन एंड पॉजिटिव फीडबैक ऑफ एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर LH सर्ज। ये दो वेरी वेरी कॉमनली टेस्टेड फैक्ट्स हैं ऑन द फाइनल एग्जाम। दोबारा फिर रिपीट करूंगा कि ओव्यूलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? LH सर्ज। LH सर्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक ऑफ एस्ट्रोजन, जो कि जनरली यानी कि स्टार्ट ऑफ द साइकिल में और इवन स्टार्ट ऑफ द साइकिल में बिफोर ओव्यूलेशन और इवन आफ्टर द ओव्यूलेशन पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में जनरली नेगेटिव फीडबैक होता है एस्ट्रोजन का LH के ऊपर। लेकिन जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन एस्ट्रोजन जो है इट स्टार्ट स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ LH। सो इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप गॉट कन्वर्टेड टू द पॉजिटिव फीडबैक लूप। सो LH सर्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन and positive feedback of estrogen responsible for the LH surge.
एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बर्थ प्रोसेस। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, बर्थ कैनाल इज फॉर्म्ड बाय सर्विक्स, वजाइना, वल्वा, ऑल ऑफ दीज, एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज। एंड अनदर क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ बर्थ व्हिच सब्सटेंस एंटर्स द मैटरनल ब्लड फ्रॉम फीटस टू डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल, राइट। हमने जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया कि बेसिकली जो प्रोजेस्टेरोन है ये एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है फॉर द प्रेगनेंसी। तो जब प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स डिक्रीज होंगे तो उस वक्त ही अल्टीमेटली जब वो बर्थ प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। सो अब फीटस में से कौन सी सब्सटेंस ऐसी है जो मैटरनल ब्लड में एंटर होगी और प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स को डिक्रीज करेगी? तो यू सीन हियर, ए ऑप्शन इज ACTH, B इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, C ऑप्शन इज ऑक्सीटोसिन, D ऑप्शन इज प्लेसेंटल लैक्टोजन, एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो इसमें अब हम बर्थ प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। सबसे पहले जेस्टेशनल पीरियड या प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है ये अप्रॉक्सीमेटली 280 डेज या 40 वीक्स या 9 मंथ्स एंड 10 डेज होता है तकरीबन, राइट। सो एम्ब्रियो से लेके अल्टीमेटली कह रहे हैं कि 40 वीक्स ओवरऑल लगते हैं टू डेवलप बेबी इन अ ह्यूमन फीमेल। ये टिपिकल रेंज है, ऑफ कोर्स ये वेरी भी कर सकती है, ये जो है इवन ये 40 से 38 वीक्स पे भी आ सकती है, इवन इससे भी लेसर टाइम फ्रेम में भी जो बर्थ है ये हो सकती है, लेकिन ये जनरल एक्सेप्टेड फिगर है जो कि मैंने आपको दे दिया। एंड हार्मोन्स इन द प्रेगनेंसी अब कौन कौन से ऑपरेटिव है इसमें आप देखें, एक तो LTH या ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन जिसको कहते हैं, प्लस ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इनका काम क्या है? इन्होंने मेमोरी डेवलपमेंट कैरी आउट करनी है, यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप किया जा रहा है बेसिकली, ताकि राइट आफ्टर द बर्थ बेबी की जो फीडिंग है वो स्टार्ट कराई जा सके, उसको ब्रेस्ट मिल्क फीड किया जा सके। और उसके बाद फिर जो ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन है LTH, ये LH के साथ मिल के काम करता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम? बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम इट्स एक्चुअली गिविंग यू द प्रोजेस्टेरोन स्पेशली फॉर इनिशियल 3 मंथ्स, फॉर इनिशियल 3 मंथ्स। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? यू सीन हियर कि जो प्रोजेस्टेरोन है बेसिकली ये एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है फॉर प्रेगनेंसी। अब जस्ट इमेजिन करें कि से हमारे पास ये डे से हमारे पास ये 0 मंथ है, right, and then we are having these 3 months and then we are having these 6 months, ultimately हमारे पास ये 9 month है, right। so 0 से 3 months तक और 3 से 9 months तक अल्टीमेटली। अब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मेनली प्रोजेस्टेरोन ने आना है, प्रोजेस्टेरोन इट कम्स फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम, जबकि जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है यानी कि जो आखिरी 6 महीने हैं इनमें प्रोजेस्टेरोन इट कम्स फ्रॉम द प्लेसेंटा, मेनली फ्रॉम द प्लेसेंटा। सो पहले 3 महीने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन ने आना है और आखिरी 6 महीने के लिए प्लेसेंटा से आना है। अब यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि फर्स्ट करें कि अगर एक गॉड फॉरबिड एक फीमेल है, शी हैज़ कंसीव्ड एंड शी वाज लेटर ऑन डायग्नोज्ड विद द ओवेरियन कैंसर एंड उसकी ओवरी रीसेक्ट करनी पड़ रही है, उसकी ओवरी काटनी पड़ रही है, तो व्हेन इट वुड बी सेफ टू रिमूव हर ओवरी ऑफ कोर्स आफ्टर फर्स्ट 3 मंथ्स। क्यों? क्योंकि ओवरी के अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम है इट्स मेकिंग प्रोजेस्टेरोन एंड इट्स कीपिंग द बेबी अलाइव, राइट, एंड इट्स हेल्पिंग टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो 3 महीने के बाद अगर आप ओवरी रिमूव कर भी देंगे स्टिल प्लेसेंटा उस वक्त उतनी थिकनेस उसकी हो चुकी होती है, स्टार्ट मेकिंग इट्स ओन प्रोजेस्टेरोन सो इट कैन मेंटेन द प्रेगनेंसी, राइट। सो इसलिए यू सीन हियर LTH और LH ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन प्लस लुटेनाइजिंग हार्मोन दोनों मिलकर कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेंगे and initial 3 months के लिए it would be making the progesterone. A progesterone you seen here, this is a hormone which is absolutely required for the maintenance of the pregnancy. So basically ये lutotrophic hormone and progesterone ये क्या है? Basically ये placental hormones हैं, even जो human placental lactogen है ये भी placental hormone है. So ये important hormones है pregnancy के. अब हम mechanism of the birth process को detail से discuss करते हैं. You seen here कि just imagine, let me erase the ink from here so that I may generate certain more high yield points. So you seen here कि just imagine कि we have got the mom here, we have got the baby here and they are connected to each other via the placenta. तो इसमें देखें कि बर्थ प्रोसेस जब स्टार्ट होना है बेसिकली सबसे पहले क्या होगा, जब 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं बेबी पे स्ट्रेस आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल बेबी फील्स द स्ट्रेस और उसके नतीजे में क्या होगा, जो बेबी का हाइपोथैलेमस है ये CRF प्रोड्यूस करेगा विच इज कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर
और CRF के इन्फ्लुएंस के अंडर जो बेबी का या फीटस का जो पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये प्रोड्यूस करेगा ACTH, और ACTH के रिस्पॉन्स में जो फीटस के सुप्रारीनल ग्लैंड्स हैं, उनका जो कॉर्टिकल पोर्शन है, इट विल प्रोड्यूस द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, दे वुड एंटर इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो बेबी ने स्ट्रेस फील की 9 मंथ्स पे, उसकी वजह से हाइपोथैलेमस ने CRF प्रोड्यूस किया, बेबी के हाइपोथैलेमस ने। बेबी के हाइपोथैलेमस के रिस्पॉन्स में बेबी के पिट्यूटरी ने, जो कि अब तक डेवलप हो चुका होगा काफी हद तक, बेबी के पिट्यूटरी ने क्या प्रोड्यूस किया, ACTH, और बेबी के ACTH के रिस्पॉन्स में जो बेबी के ही सुप्रारीनल ग्लैंड्स हैं, उनके कॉर्टिकल पोर्शन ने क्या प्रोड्यूस किया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अब एंटर होंगे इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी सब्सटेंस वो बेबी से मदर में एंटर होगी एट द एंड ऑफ द टर्म, एट द एंड ऑफ द 9 मंथ्स, राइट, सो दैट इज द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऑफ मदर में एंटर हुआ है, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर जो इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन है इन रिस्पॉन्स टू द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऑफ मदर, जो प्रोजेस्टेरॉन की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होगी, और प्रोजेस्टेरॉन की जो प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, इट वुड एक्ट एज अ स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पिट्यूटरी ऑफ द मदर। और ऑक्सीटोसिन क्या करना है, ऑक्सीटोसिन ने ऑफ कोर्स, और ऑक्सीटोसिन इट विल ट्रेवल वाया ब्लड टू द यूट्रस एंड इट विल कॉज वेरी विगरस एंड पावरफुल कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन स्मूथ मसल्स, और इसके नतीजे में क्या होगा, लेबर पेन स्टार्ट होगी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अल्टीमेटली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगी एंड द फीटस वुड बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। सो एक्सपल्शन ऑफ फीटस वुड रिजल्ट। सो ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म है बर्थ प्रोसेस का। वंस अगेन, बेबी पे स्ट्रेस आई, उसके हाइपोथैलेमस ने CRF प्रोड्यूस किया, बेबी के हाइपोथैलेमस के CRF के रिस्पॉन्स में बेबी के पिट्यूटरी ने ACTH प्रोड्यूस किया, बेबी के ACTH के रिस्पॉन्स में जो बेबी का सुपररीनल ग्लैंड है उसने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोड्यूस किए, वो मदर में एंटर हुए, मदर में एंटर होकर उन्होंने प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स को डिक्रीज कराया। प्रोजेस्टेरॉन के जो डिक्रीज लेवल्स हैं, दे वुड एक्चुअली कॉज द प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन वुड कॉज द पावरफुल कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस, जो कि मायोमेट्रियम में प्रेजेंट होंगे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बेबी वुड बी एक्सपेल्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। सो ये पूरे का पूरा प्रोसेस है, मैकेनिज्म है। और बर्थ के बाद अब क्या होगा, जब एक दफा बेबी आउटर वर्ल्ड में आ गया है, अब क्या होगा, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी अम्बिलिकल कॉर्ड इज लाइगेटेड एंड बेबी इज रिलीज फ्रॉम द मदर। जब बेबी बाहर आ गया, अब जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको लाइगेट कर देते हैं और बेबी को मदर से रिलीज कर देते हैं। 10 से 45 मिनट में क्या होगा, आफ्टर बर्थ यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सेपरेट्स द प्लेसेंटा व्हिच पासेस आउट थ्रू द वेजाइना। सो पहले बेबी बाहर आ गया, फिर हमने जो जब बेबी बाहर आ गया, उसकी जो कॉर्ड को लाइगेट करके बेबी को सेपरेट कर लिया। तकरीबन 10 से 45 मिनट के बाद यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट की विगरसली, प्लेसेंटा भी बाहर आ गया, राइट, वेजाइना के थ्रू, and then bleeding is naturally controlled by contraction of the smooth muscles surrounding the uterine blood vessels। अब चूंकि यूट्राइन ब्लड वेसल्स जो हैं ऑफ कोर्स उनकी वेस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई भी होती है, लेकिन बहुत विगरस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूट्राइन मसल्स की क्या होगा, यूट्रस का साइज एकदम से बहुत छोटा हो जाएगा और जो वेसल्स हैं उसकी वॉल्स के अंदर वो कंप्रेस हो जाएंगी, जिससे जो ब्लीडिंग है उसको मिनिमाइज कर दिया जाएगा, बट स्टिल ब्लीडिंग वुड बी देयर, राइट। और तकरीबन यू सीन है कि 350 cm³ या 350 ml ब्लड जो है तकरीबन एक एवरेज प्रेगनेंसी में वो लूज होता है, बट दिस इज़ नॉट अ बिग इशू। इससे जो फीमेल है रिकवर्स वेरी फास्ट, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द प्रोसेस ऑफ द बर्थ। और इसके साथ ही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हम इसकी डिस्कशन हमारी कंप्लीट हुई। एंड अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर ज़रूरत आपको महसूस हो रही है, चूँकि खासा कॉन्सेप्चुअल एरिया था, आप इसी लेक्चर को एक दफ़ा दोबारा सुन लें, रीड योर टेक्स्ट बुक, और रिवीजन नोट्स के ज़रिए आप जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमारे जो फर्स्ट रिवीजन नोट्स हैं, वो आप उनको रिव्यू करें और अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, और तब तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहें जब तक यू डोंट स्टार्ट गेटिंग ऑल योर क्वेश्चंस राइट इन आवर क्वेश्चन बैंक, राइट। सो दैट्स हाउ यू आर गोना प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर एरिया फॉर sake of your entrance exam. I hope that you have enjoyed the process of learning with me. Thank you very much for the patient listening. May Allah bless you. जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल क्या है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड के, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जेक्टिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं
इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया, इसको आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शंस फिर ओपन हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स। एनीवेज, सो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें, से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ, तो इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। सो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें आप देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चंस उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपग्रेड.bk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चंस का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चंस के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चंस को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया था, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। आप किसी भी टैग पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस हैं वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट पूल है, जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शंस को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन को चूज किया, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सब सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्ट्रीम। जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केपीके का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश,
और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से आप किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तैयारी के शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें एक तो वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो है वो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है, स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली हैं। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज अबाउट topgrade.in। अब लास्ट में मैं आपको यही कह के अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहूंगा कि देर ना करें, अभी से टॉप ग्रेड को ज्वाइन करें और मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला यकीनी बनाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।